I would start up with a small phrase जो एक होता है go with the flow. I think that would perfectly sum up this one line where he used to say, "Don't come with me with just a problem. Come to my room with a solution." Yeah. तो आई थिंक ये वाली भी बहुत ज़्यादा एक मिथ है पाकिस्तान के अंदर कि जॉब्स नहीं होती। Okay. जॉब्स होती हैं बट दे ऑलवेज बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट मार्केटिंग इज़ one of the most difficult fields that there could be. So, for example, if इसका है कि AI will not take your job, but people who use AI will take your job. Yeah. I am a huge advocate of AI. मतलब मैं तो honestly Assalamu alaikum, everybody. This is Rasik Asgar here on the Campus to Career podcast. Today's episode will be a special one as we have with us someone who is not only a great speaker but a very intelligent person as well, a dear friend and a brilliant marketer. He is currently the brand manager at GWH Pakistan, Sazgar Auto. Welcome, Mujib Ahmed. Assalamu alaikum. वालेकुम रासिक एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स लगता है इसमें थोड़ी सी झूठी तारीफ भी आपने ऐड कर दी है थोड़ी सी लिखी रखी होगी बट या इसमें कुछ भी झूठा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी झूठा नहीं था, बट या आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू हैव यू, एंड आई एम श्योर people, who want to get the most out of this podcast will inshallah do so. So I think let's begin from the start. Maybe tell us a bit about yourself, your education, and how did you end up where you are today. Like, I would really want to know how did you join. अच्छा सो आई वुड स्टार्ट अप विद अ स्मॉल फ्रेज जो एक होता है गो विद द फ्लो आई थिंक दैट वुड perfectly sum up my career because just a little about my background. So my father's a doctor, so a lot of people would connect with my thinking and कि बचपन से ही it was all like कि I have elder siblings as well, so यही था कि यार डॉक्टर बनो. But my, as far as I could go back to kindergarten, I remember my mother used to always tell me कि मेरे teachers भी हमेशा कहते थे यार ये कहानियाँ बहुत मारता है ऐसा वगैरह. Huh. So I think that was something that my parents should have picked up कि अच्छा कहानियाँ बहुत मारता है, that there is some level of creativity in him, but well they didn't. So till I think my O levels the idea was to become a doctor, but वही मेरे अंदर थोड़ा सा वो I think एक इंटरेस्ट आई थिंक गैप था फॉर बिकमिंग बिकॉज ऑब्वियसली देयर कम्स अ सर्टेन पैशन लेवल कि आपका कि आपने जो डॉक्टर है उसमें जाना है मेडिकल फील्ड में जाना है. सो ए लेवल्स में आई थॉट कि अच्छा कि इफ़ अगर मेरी साइंसेस की नहीं है सो आई जस्ट ड्रॉप बायो और सिंपली आई थिंक पीपल हु हैव डन ओ इन ए लेवल्स उन्होंने देखा होगा कि जो बायो छोड़ के फिर ए लेवल्स के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्री इंजीनियरिंग में आ जाता है. बट इंजीनियरिंग वाज आल्सो समथिंग जो मुझे क्लिक नहीं की. सही है। So till the point of A levels, I had no idea what I want to do with my life. हम्म। I was, of the thinking that "Achha, maybe I'll take a gap year." So rather than taking a gap year, my brother was at that time studying in LSE, Lahore School of Economics. So he told me कि यार तुम gap year rather than taking gap year, why don't you try out going into and coming into this field of marketing, economics and all of this. तुम सब कुछ तुम try कर चुके हो. You've tried engineering, you've tried pre-medical. सो वहाँ फिर जस्ट फॉर दैट और मेरा काफ़ी फ़नी केस था दैट जस्ट बिफोर द क्लासेस स्टार्टेड हम्म। जस्ट 1 वीक बिफोर दैट आई वेंट टू द LSE ऑफिस और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की पूरा उनको बताया कि इस तरह ही है एंड उन्होंने कहा चलें ठीक है सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप टेस्ट दे दें. सो मैंने टेस्ट दिया जस्ट 1 डे बिफोर द क्लास स्टार्टेड. संडे को जाके मैं अपना एडमिशन करा के आया एंड एट द टाइम दे वर वेरी नाइस विद मी एंड दे अंडरस्टूड कि मेरी जो पूरी ये स्टोरी है वो इट वाज एक्चुअली ट्रू और मैं कोई अपनी भी बना रहा था. अच्छा। सो खैर went to LSE and I think that's where I really found myself. I really came to know कि अच्छा ठीक है सही है कि this is where I really want to be because of the I think यहाँ पे huge praise to LSE because they really made me find out what my true abilities are. I love to speak. I love to think analytically, strategically, any problem solving things because LSE का थोड़ा सा पढ़ाने का style भी है. It's mostly about they bring out the best of you. They Yes. let you be, but they also bring out the best of you. So वहाँ से my career into marketing started. हम्म। So वहाँ से during that time I did a few internships and while I was studying in the fourth year I got an opportunity जहाँ पे मुझे in a marketing agency
एक नाइट और वीकेंड रिसोर्स की बेसिकली जो एक जॉब है वो ऑफर हुई थी. सो ओके आई वाज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप बट दे वर लुकिंग फॉर समवन जो नाइट एंड वीकेंड के ऊपर ना उनका एक रिसोर्स कर ले इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल लिसनिंग. okay okay. So this was at the time, like you were studying at the time, right? Like in your final year? Sorry. Yes, I was. Yes, I was studying at that time. I Mm-hmm. was studying at that time और थोड़े से उनके टाइमिंग्स और जॉब जो स्पेसिफिकेशन थी थोड़ी सी और थी दैट ड्यूरिंग द वीकडेज मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो थे फ्रॉम 8 p.m. to 2 a.m. एंड देन वीकेंड के ऊपर मेरा था फ्रॉम 10 a.m. to 4 p.m. सो दैट वाज समथिंग वेरी ऑड और उस टाइम पे बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार भी क्या करने की ज़रूरत है इस Uh, तरह जब uh, ग्रेजुएट हो जाओगे तब जॉब की टेंशन लेना अभी इस तरह क्यों करने की जरूरत है. बट आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच व्हेन आई लुक बैक because what happened mhm. while we graduated together, I think you could also connect with that. हम कोविड में ग्रेजुएट किए थे Yeah. एंड व्हेन वी वेंट इनटू द जॉब मार्केट यू नो what the situation was. So वहाँ पे my first job that I landed was the same job जो मैं एक साल पहले वीकेंड और नाइट्स में कर रहा था. Okay. So that was something that paid off. Mhm. So वो चीज़ मैंने देखी थी. So मुझे यूजुअली जो थिंकिंग इधर होती है, एट दैट टाइम फाइनल ईयर है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली, आगे सारी उम्र यही चीज़ करनी है. सो ये कुछ थॉट प्रोसेस, इस तरह के थॉट्स आए थे आपके दिमाग में, या यू थॉट उस टाइम पे भी वेरी मैच्योरली कि दिस माइट गिव मी अ हेड स्टार्ट, या फिर अगेन लाइक यू सेड जस्ट गो विद द फ्लो वाला सीन था? Yeah, उस time, honestly speaking, I didn't take it that seriously. मैं honestly बात बताऊँ because then again, uh, when you're in your third or fourth year, you're at the peak of your young phase. कि Yeah. oh, I will conquer the world. मुझे भी जरूरत नहीं जॉब करने की all of that. That ये वो element था. मैं पूरी बात क्यों बोलूँ कि मैं बहुत आगे की सोच रहा था, proactively thinking कर रहा था कि अच्छा मैं ये जॉब करूँगा मुझे यहाँ लैंड करनी. That was it. But once I started doing that job, I just did it as a new challenge for me. कि Hmm. अच्छा यार लेट्स ट्राई एंड डू दिस. एक तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड वंस आई स्टार्टेड टू डू इट आई एक्चुअली रियलाइज हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्लिकिंग. Mhm. इट क्लिक्ड. Okay. That job clicked. And I think the brand that I was working with, PepsiCo. So I was working with their agency, Group M, में Mindshare है, who were their official agency of their Department of Social Listening. So Mhm. वहाँ पे I was looking at the different SBUs of PepsiCo. So वहाँ पे obviously that was a charm as well. But I think ज़्यादा वो हुआ था कि on the job it clicked and I really liked what I was doing. So Okay. वहाँ पे I think that factor came in that yes थोड़ा सा मुझे आहिस्ता आहिस्ता 1 month 2 months down the line मुझे realize होना शुरू हो गया था that this will help and this might give me a head start when I graduate compared to all of the people who are going to graduate with me. और उस टाइम पे आपने कुछ ये सोचा था कि पे कितनी है, या इसका मैं क्या करूँगा, या ये एक्सपीरियंस मिलेगा, या कुछ भी, No, no, वो ऐसा कुछ भी थॉट नहीं आया no, था, no. राइट? So the whole idea was not to focus on the monetary value that I'm getting. सही The है. whole idea was to get experience because then again it was not just an internship. हुँ. It was a proper job. So I got almost 10 months of experience while I was there और मुझे proper contractual job थी वो. हुँ. So I think that was something which was really something which clicked and it made me understand कि ठीक है पैसे बेशक जितने मर्जी हैं और जस्ट बाय द वे बहुत कम थे. इतने कम थे कि मेरा खाली जो इंटरनेट का जो पैकेज है वो होता था. हुँ. सो या सो इट वाज समथिंग जिसमें मुझे यही था कि जस्ट गेट द एक्सपीरियंस हुँ. जस्ट गेट द वैलिड एक्सपीरियंस एंड इट विल हेल्प यू एंड इट माइट हेल्प यू वंस यू ग्रेजुएट. Okay. So, all right, interesting. Mujib, I know that when usually people graduate, शायद हमारे टाइम पे भी और कुछ अरसे बाद तक, I don't know what's happening today, maybe you can shed some light on that. But generally, when people graduate, when young students graduate from, let's say, LSE, or after doing, marketing degrees, they go into the digital media side, right? The advertising side, the other part of media, that we see, and you were a part of that as well, right? So generally from what I know, लोगों को ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ एजेंसीज वाली साइड पे पहले मिलती हैं बिफोर गोइंग इनटू द ब्रांड. सो जब मैं इस पॉडकास्ट की तैयारी भी कर रहा था, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो, एंड आई वांट टू शिफ्ट द कॉन्वर्सेशन टू द एंगल जहाँ पे आई नो कि मैनी पीपल स्ट्रगल कि यार एजेंसी से ब्रांड तक किस तरह जाना है.
So, and you are someone who was able to make that switch, right? We'll come back to that a bit later on, but I want to know specifically कि आपका एजेंसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, नॉट नेसेसरली द ओनली एजेंसी दैट यू वर्कड एट, आई नो कि आपने 2-3 एजेंसीज के साथ काम किया है, सो वो एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था, क्या लर्निंग्स थी दैट इवेंचुअली हेल्प्ड यू टू मूव टू द ब्रांड साइड, और कोई एक ऐसा मोमेंट था दैट मेड यू रियलाइज कि यार अब मैंने एजेंसी से ब्रांड साइड पे जाना है, या ये आहिस्ता-आहिस्ता इट वाज़ अ ग्रेजुअल रियलाइज़ेशन? सही है। So first, I'll just talk a little about how agencies work. So what normally does is that how you asked about what are agencies or just a brand or agency में क्या फर्क है. हुँ, So basically अब ये है कि in a brand there are few brand managers, marketing managers, but उन्होंने अपनी marketing जो outsource की होती है. For example, your research, your strategy, your creative, your design team, your video editing team, all of that वो आपकी outsource normally हो जाती है to agencies. सही सो है। एजेंसीज के अंदर थोड़ा सा फायदा ये होता है कि अंडर वन रूफ एक तो आई थिंक नंबर वन थिंग इज एक्सपोजर. सो while you're working at one industry, हुँ, उसी के साथ आप देखोगे कि सुबह आप हैट पहनी होती है ऑफ बीइंग इन एफएमसीजी, 2 घंटे बाद यू वेयरिंग हैट ऑफ एन ऑटोमोबाइल, 2 घंटे बाद आपने फार्मा की हैट पहनी होगी. सो आई थिंक एक्सपोजर इज वन थिंग विच इज अमेजिंग. ओके। सो आपको एक्सपोजर मिलता रहता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज का. सो एजेंसीज के अंदर एक तो यस, सो वंस नॉर्मली पीपल ग्रेजुएट जब उनकी मार्केटिंग रिलेवेंट इंडस्ट्री होती है, so it's easier to get into agencies because then again the teams are bigger, हुँ, आपकी positions ज़्यादा होती हैं, and then it's easier to get in because then again you understand कि किस तरह brands के अंदर and companies के अंदर which we have in our country उसके अंदर एक level of experience वो मांगते हैं, but that is gradually which we will talk about later on. But agencies के अंदर I think if I talk about my experience, it was amazing. Now that I look back, my almost 6.5, 7 years of experience in agencies, the man that I am today, the marketeer that I am today, मुझे agencies ने ही बनाया और मेरे experiences ने. Agencies के कुछ drawbacks हैं, कुछ उसके बहुत अच्छे हैं, but it all comes down to your attitude. अगर क्योंकि once you enter the office, you have a lot to work on because there will be normally around 30 to 35 people हुँ, who will be coming from different backgrounds, who will have different experiences, different expertise, and who will be working simultaneously on different brands. So आपको learning की ability बहुत ज़्यादा आपकी होती है. It's just about how you take the सही, initiative. या, अगर आप इनिशिएटिव लेने पे आओगे, आई थिंक एजेंसीज के अंदर एक तो फ़ायदा ये होता है कि रूम टू प्ले बहुत ज़्यादा है. यू कैन सिंपली से कि अच्छा कि अगर एक एक्स वाई जी की एक एनुअल प्लानिंग ब्रांड स्ट्रैटेजी मीटिंग हो रही है, मैंने उसमें बैठना है, हुँ, आप हुँ, बैठ सकते हो. बट वंस यू गो इनटू कॉर्पोरेट यू अंडरस्टैंड कि अच्छा एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और एक हायरार्की आ जाती है. बिल्कुल, बट विद एजेंसीज इवन इफ यूर यंग एंड यूर गुड, आप उस मीटिंग्स का पार्ट बन सकते हो. सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गेट, वो एक्सपोजर आपको कहीं और किसी फील्ड में नहीं मिल सकता. सो टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली माई एक्सपीरियंस, बड़ा एक फनी स्टोरी है बट देर इज के वेन एवर आई गो इन टू अ कंपनी, हुँ। यार मेरा जो बॉस है ना वो छोड़ के चला जाता है. सो पनौती हो तुम। बनौती तो नहीं कह सकते बट इस तरह से ही कह सकते हैं कि आई डोंट नो देयर वाज समथिंग अबाउट कि व्हेन एवर सो माय फर्स्ट जॉब आई वेंट इनटू माय बॉस लेफ्ट फॉर यूएस. ओके। शी गॉट इमिग्रेशन, शी वेंट टू यूएस. सो उसके बाद देयर वाज अ ट्रांजिशनल पीरियड. फिर उसके बाद आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी बिकॉज व्हाट दैट डज इज कि एक वो आपकी जो एक लेयर है ना हुँ, वो निकल जाती है with coordinating with, for या, example, your business directors, your all of those people, hierarchy में थोड़ा सा आपको एक वो एक लेयर निकल जाती है. वहाँ पे एक आपको सीखने को भी बहुत मिलता है. हुँ, वो एक मेक और ब्रेक का टाइम होता है. अब मेरे लिए मेक और ब्रेक का टाइम वो शुरू के कुछ महीने थे वर्किंग एट माइंडशेयर, जहाँ पे आई वॉज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल जिनका एक्सपीरियंस शायद मेरी एज का था. सो वहाँ पे दैट लर्निंग कर्व, दैट आई थिंक उसमें एक एजेंसीज के अंदर बहुत ज़्यादा एक मशहूर बात है कि हर वक्त आग लगी होती है. हुँ, देर यू जस्ट नीड टू बी अ फायर फाइटर फायर बिकॉज फाइटर। हमेशा चीज़ आके एक फायर फाइटिंग वो वाली चीज़ होती है. So I think that was something which I really learned in the few 6, 7 months of my career, हुँ, and which really helped me in when I went to different agencies at maybe a junior level. वहाँ पे crisis आया हुआ है, चीज़ें मतलब शोर मच रहा है, there are people panicking, all of this. मैं पीछे बैठ के ओके कैसा यार
दिस टू शैल पास, कुछ नहीं होता है, क्या मुझे हो वो गया। वाली मीम याद आ गई जिसमें पीछे आग लगी हुई है और बस वो आप इस तरह सुकून से बैठे हुए हो। क्योंकि आप लोग, मैं फ्रॉम गैदरिंग फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, वो एक तरह से फास्ट पेस की इतनी आदत हो चुकी होती है कि इट डजंट मैटर, यू नो हाउ, obviously I've not been a part of any agency, but how I can relate to this, and talking to previous guests as well, ये very much like a startup, mindset है कि you get a lot of exposure suddenly, and you get to have conversations with the higher ups at a very young age, और वो उसका exposure ही next level होता है. So judging from what you're saying, I think it's very much similar, right? Yes, I would definitely agree to that. I think at a very young age जो कुछ जो एक क्लीशे वर्ड होते थे ना, एक्सपोजर, नेटवर्किंग, Hmm. कनेक्शंस और ये सब कुछ, आई थिंक ये आपको कुछ साल बाद जाके रियलाइज होते हैं कि these are actually what really matter at the end of the day. Because at the end of the day, if someone, if in any company or any brand or any good institution with a good 20-25 years of experience, they know you by name or at least by face, and they know कि अच्छा यार ये अच्छा काम करता है या अच्छा काम करती है. So I think that is something which at the end of the day matters, because अगर उन्होंने किसी के आगे बात कर दी है ना, Hmm. तो I think वो वाली चीज़ पर एक really would give a good impression, और आपकी इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ अच्छी न्यूज़ और अच्छा impression that really spreads. So I think that's really important. सही है. Since we're talking about agencies, I want to know, like, because hopefully इस podcast के कुछ audience वो भी हैं that are currently working but they want to switch, right? So being in a position where you have made that switch very successfully, mashallah. So I want to know, okay, for someone, right, who is in a marketing agency or ad agency right now, what should they be doing consciously to position themselves, right, for a smoother transition to the brand side? या would you say कि ये बस एक तुक्के से चीज़ हो जाती है, या फिर you were lucky? थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं. Is there anything a person can do consciously to make sure that they move towards that side? So I think it's a combination of a few things. I think number one would be being there at a right time. So I think जो मैंने इससे पहले भी बात की, growing your connections and networking, I think that's a huge part. Because अगर आप एक छोटा सा सर्वे भी करो ना, normally people shifting from an agency to a brand, normally ज़्यादातर लोग उसी brands में जाते हैं which they have worked on, Yes. because they give जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं वो prominence में आते हैं. With my experience as well, while I was working at an agency, Digis Day Stars, जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा अपना time गुजारा. So when Havel and GWM was launching in Pakistan, this is back in 2022. So तब we were their first agency and we worked with Oh, them for around 1.5-2 years. So okay. तब they didn't have any marketing in house, कुछ भी नहीं था. So they completely उन्होंने दिया. So उनकी launch strategy, positioning, everything. And at that time, then again, I was in the department of strategy. बट मेरी वही था कि एक लर्निंग वाली चीज़ थी कि मैंने लर्न करना है. सो मैं उनकी पार्टनरशिप्स में जाना शुरू हो गया कि अच्छा ठीक है, पार्टनरशिप हो गई, ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस हो गई, क्रिएटिव उनकी थोड़ी चीज़ें हैं वो भी देखना शुरू किया. सो आई वाज लुकिंग एट एवरीथिंग ऑफ देयर, और मैंने उस प्रोजेक्ट को बड़ा ना एक पर्सनली लिया, विदाउट द हाइंडसाइट कि अच्छा यार मैं कुछ साल बाद जाके आई विल बी वर्किंग Yeah. एट दिस प्लेस. Yeah. So those 1.5-2 years, I think जो मैंने उसमें काम किया था, that really helped me. So if I talk about my hiring process, it was not about कि अच्छा है कि बंदे को काम आते क्या था. It just was about the right fit, because the GM, he knew me, उसने मेरे साथ काम किया हुआ था. He knew me when I was working. So I think coming back to that question, how to make that transition, I think number one is understanding कि once you make that shift, and to make that shift to a brand, आपके स्किल सेट से ज़्यादा इट्स अबाउट मैनेजिंग, बिकॉज यू गो एज अ ब्रांड मैनेजर और सीनियर ब्रांड Yeah. मैनेजर. Yeah. आपका जो एक मैनेजर का रोल है ना, लोग उसको ज़्यादा वही करते हैं कि देन अगेन पीछे आग लगी हो, पैनिक हो रही हो, कुछ हो रहा हो. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट प्रेशर मैनेजमेंट. Hmm. और एक other than that, I think the skill set, I think that has to go, because after a few years of experience, 5, 6, 7 years, I think if you talk about goals, and for the people who are going to be watching this podcast as well, have goals. क्योंकि मैंने personally एक goal अपना ही रखा हुआ था कि 6 years is something that I'm going to give to the agency side,
Yeah. then I will be actively looking to move into brands. Mm-hmm. So उन 6 years के अंदर I think with the kind of competition that we have now, skill set is something, वो तो एक आप कह लें कि एक बस एक basic level है. ठीक है. Skill set तो आपको होना चाहिए. Other than that, I think LinkedIn is one platform which is in Pakistan still people think कि अच्छा बस जब job ढूंढनी होगी ना तो Mm-hmm. तब उस पर आएंगे. ये वाला माइंडसेट बहुत गलत है फॉर, और काश ये माइंडसेट व्हेन वी वर बैक इन Yeah. यूनिवर्सिटी हमें मिलना जाता, बिकॉज दिस माइंडसेट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. क्योंकि अब इफ यू गो ऑन टू लिंक्डइन, आई एम बहुत खुश होता हूँ मैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि पीपल स्टिल इन यूनिवर्सिटीज डूइंग इंटर्नशिप्स, वो भी बड़ा प्रोएक्टिवली लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं. Yeah. इट्स Yeah. नॉट अबाउट ब्रैगिंग और अबाउट समथिंग, बट इट्स जस्ट अबाउट योर प्रोफेशनल. आपने सो व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब आप सीवी अपडेट करते हो, रेज्यूमे अपडेट करते हो, बट आई थिंक जब आपके लिंक के ऊपर, लिंक्डइन के लिंक के ऊपर कोई क्लिक करता है Yes. रिक्रूटर, कोई या समवन हु इज गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, जो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक इंप्रेशन जाता है. सो इफ फॉर एग्जांपल अच्छी रिकमेंडेशंस आई हुई हैं, Mm-hmm. आपने प्रोफाइल अपनी अप टू डेट रखी हुई है, यू आपने नेटवर्किंग की थोड़ी सी आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी थोड़ी सी पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे एक आपका एक थॉट लीडरशिप, then again a cliche word, but then again thought leadership is something which people really look for in the industry as well. कि अच्छा यार इसके इसके क्या thought है about a specific topic. Yeah. So then again LinkedIn is something which I think we should really use, और ये भी चीज़ में साथ साथ यूज करना शुरू हो गया था कि जहाँ पे आई यूज टू पोस्ट अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स जो काम किए हैं विद डिफरेंट बैंड्स, व्हिच देन अगेन गिव्स ऑफ अ गुड इंप्रेशन दैट ओके दैट यू आर नॉट जस्ट वन ऑफ द पीपल जो बस काम कर रहे हैं, बट यू प्रोएक्टिवली वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल एज वेल एंड यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ एज वेल. Hmm. सो ये प्रोसेस था. अदर देन दैट आई थिंक नंबर वन वुड बी कुछ स्किल्स पे अगर मैं बताऊँ कुछ कॉन्फिडेंट, आई थिंक दैट्स कम्युनिकेशन. Because once you make the move to a brand or a company or organization, वहाँ पे communication number one. Because then again, अच्छा है या बुरा है, you have to communicate, for example, to your seniors, your board of directors, your CEOs, your CEOs. So वहाँ पे being presentable and being able to get your message across. Yeah. That is one thing. दूसरी जो जो मैं चीज़ कहूँगा, which then again I would give a huge shout out to one of my ex bosses, Abdullah Naseem, was that ke he always had this one line where he used to say, "Don't come with me with just a problem, come to my room with a solution." Yeah. यहाँ पे एक्चुअली बहुत थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ with agency side as well, or even in coming towards brand as well, बहुत से ज़्यादा आई वुड से कि क्राउड होता है जहाँ पे दे जस्ट पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स. यार ये प्रॉब्लम है, ये क्राइसिस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, काम नहीं हो सकता, ये है, ये है, ये है. बट imagine being in the position of a director or manager or GM or whatever a higher position where people report to you, और बीच में एक बंदा एक शाइनिंग लाइट की तरह है, वो कहे कि ओ ये प्रॉब्लम्स हैं बट here are like 12 solutions to this. Hmm. You will shine in all of in that darkness of problems. I think this is something a skill or something जहाँ पे solution oriented होना बहुत ज़रूरी है, where you need to come up with solutions and need to be able to come up with solutions in problems जहाँ पे हर किसी अपने हाथ उठा लिया कि यार ओ अच्छा अब ये नहीं हो सकता, because there will be times जहाँ पे आपकी टेस्ट हो गया, आप जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी, but you need to come up with solution and prioritizing. सही है. सो बेसिकली टू समराइज, यू सेड कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है. सोशल नेटवर्किंग स्लैश पर्सनल ब्रांडिंग वो बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स राइट टाइमिंग दैट आल्सो मैटर्स. बट लाइक Yes. यू सेड अर्लियर ऑन, आई थिंक जो मुझे सबसे इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ लगी है कि व्हेन यू आर वर्किंग विद अ ब्रांड, स्टिक विद दैट ब्रांड इन योर व्हाइल यू आर इन द एजेंसी, बिकॉज आपकी रिप्यूट और आपकी रेपो उनके साथ बनना शुरू हो जाती है. एंड Oh, definitely. That comes hand in hand. So if you're working with a company, and so agencies or brands का normally इस तरह का एक relation होता है. So you're talking to them maybe once or twice a day. You're meeting them 3 to 4 times a week. So normally if you make that reputation, और normally होता भी ये है कि if there's a job opening, एक तो आपको पता चल जाता है कि यार that person is leaving, yeah, and once you apply for that job and they see कि oh you have worked with it, on this brand within a capacity of an agency, so they know कि अच्छा यार आपकी onboarding भी easier होगी, because working in brand
उनका भी कोई शौक तो नहीं ना कि अच्छा यार हमने यहाँ से बंदा नहीं लेना, वो नहीं करना। या सो देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो टू फाइंड समवन जो उनके एक तो ऑर्गेनाइजेशन फिट में आ जाए, एंड देन दैट पर्सन नोज हाउ दिस ब्रांड वर्क्स। और उनको ज़्यादा टाइम ना लगे एडजस्ट होने में, बिकॉज़ यू ऑलरेडी वर्क विद देम प्रीवियसली, यू या नो द कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। या Okay, makes sense. So, Mujib, purely from a hiring perspective, you must have interviewed candidates throughout your career or at some point at least. What do you feel कि आजकल जो students आ रहे हैं या आजकल जो fresh professionals आ रहे हैं, you can say, what are the gaps or the red flags you have seen in this day to day and how they can improve on that? अच्छा, सो आई थिंक एक तो जो गैप है दैट आई वुड गो बैक टू हैविंग रेलिवेंट, सो इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेश ग्रेजुएट्स, सो एक तो आई थिंक नंबर वन वुड बी हैविंग रेलिवेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. अच्छा. So I think a huge tip to all of the people who will be watching this podcast और जो अभी यूनिवर्सिटी में हैं, get relevant experience of companies जहाँ पे उसके बाद आपने जॉब करनी है बाद में. So I am completely understand कि definitely यूनिवर्सिटी के अंदर you're not sure but you have a specific idea. So if you want to work in advertising, try to get internships in agencies or some small startups, something जो who are in the realm of advertising. क्योंकि नॉर्मली होता ये क्या है कि जब सीवीज आती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की, कुछ भी एक इंटर्नशिप होती है सप्लाई चेन की, एक होती है फाइनेंस की, Yeah. और एंड वी बोथ नो कि वो इंटर्नशिप्स किस तरह की होती है बिकॉज वी बोथ हैव डन दैट. Yeah. आप सुबह जाते हो, चाय पीते हो, एंजॉय करते हो, हल्ला गुल्ला किया, वापस आ गए. सो बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन पाकिस्तान, सो यू सी द नंबर ऑफ पीपल दैट आर ग्रेजुएटिंग, द यंग पीपल, एंड देन जॉब्स बहुत ज़्यादा है. एक तो आई थिंक ये वाली भी बहुत ज़्यादा एक मिथ है पाकिस्तान के अंदर कि जॉब्स नहीं होती. Okay. जॉब्स होती हैं बट दे ऑलवेज गेट टू पीपल हु स्टैंड आउट. So up, so then again, I think working number one, getting relevant internship experience, आपको अपने comfort zone से भी बाहर जाना पड़े, so I think वो चीज़ आपको करनी चाहिए. Second would be getting out of your comfort zone. Mm-hmm. अब थोड़ा सा I think with the younger generation, I'm a proud Gen Z as well, but I think थोड़ा सा एक comfort zone और एक वो barrier है ना, हमने उसको नहीं करना है. Because I completely understand having relevant working hours, उससे बाहर नहीं जा सकते, एक strictly उसको follow करना है, ये चीज़ नहीं कर सकते. So I'll just share a funny experience that I had during an interview. Yeah. So I was interviewing a fresh graduate. So I have had to hire a associate, strategy associate मैंने hire करना था while I was in the agency side. सो मैंने आई रियली लाइक दैट पर्सन, बहुत अच्छा था, वेरी प्रोएक्टिव, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी. सो मैंने जस्ट एज अ हेड्स अप मैंने बता दिया, मैंने कहा देखो यार कि कभी कभी इस तरह होता है, नॉट यूजुअल बट कभी कभी ऐसा होता है कि वंस देयर इज समथिंग एक्टिव कैंपेन गोइंग ऑन, कोई कैंपेन लॉन्च होनी, कुछ भी होना है, सो यू माइट हैव टू स्टे फॉर अ लिटिल लॉन्गर देन योर वर्किंग आवर्स. बट इन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरे जो मैनेजर्स थे उन्होंने मुझे ये लेवरेज दिया हुआ था कि इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे इन ऑफिस, एटलीस्ट व्हेन यू गो होम स्टे एक्टिव ऑन योर फोन, लैपटॉप के करीब रहना, कि इन केस अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम, बट दैट इज कुछ दिनों के अंदर. वरना तो आप जब घर जाते हो यू फ्री टू डू वट एवर यू आर, आपकी व्हाट्सएप पे चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, बिकॉज दैट्स अगेन समथिंग जो एक कॉर्पोरेट के अंदर है कि फ़ोन के अंदर तो आपने यार अवेलेबल रहना ही है. वंस आई सेड दैट, उसका शक्ल चेंज हो गया एंड ही वाज लाइक नहीं, आई कांट डू दैट. आई वाज लाइक क्यों, क्या हुआ है? कहते देखिए पहली बार ऑफिस के अंदर तो मैं लेट रह नहीं सकता, बिकॉज मेरा स्पेसिफिक टाइम सेट है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ गेमिंग करनी है 7:30 से 9:30. अब that was something, I am not against gaming, I am not against having fun with your friends, but then again, flexibility and adaptability. You need to understand once you're entering an organization, you need to have that flexibility there. So वो वाली चीज़ है कि जहाँ पे you need to be flexible as well and see कि अच्छा if you're going into a company, थोड़े से times ऐसे आएंगे, crunch times आएंगे, and once you go over those crunch times, if you have added some sort of productivity level, आपने उसमें अपना कोई अच्छा ऐड किया है, बाद में जाके your employer or the organization will really remember you. So वो वाली चीज़ है. Yeah, I think ये बहुत कॉमन चीज़ है कि इस तरह के टाइम आते हैं, हर जगह ही आते हैं. एंड मैं अगर एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे भी यही होता है कि यार जब कोई क्राइसिस आई, वो बंदा था वहाँ पे कि नहीं था. अगर तो वो था वहाँ पे,
if he or she helped us, then automatically he or she stands out from the crowd. I think वही You become वो you become a basically, dependable person. yeah, that is an window of opportunity for you, right? मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम लोग अपना माइंडसेट स्विच करें कि यार मुझे 2-3 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, रादर देन थिंकिंग अबाउट दैट, थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट कि यार ये Exactly. मुझे 2-3 साल बाद या मे बी लेट से 6-8 मंथ्स बाद ही मुझे इसका फायदा देगा. तो Hmm. दैट वुड बी दैट वुड Because चेंज. those 2-3 hours you might think, oh, my manager or my senior, यार ये तो भूल जाएंगे. हम्म. Honestly, trust me, they don't forget. या. मतलब I work with people जहाँ पे मुझे नजर आता है कि if someone is putting in extra effort or I am putting in extra effort, I can see from my manager, my director and see कि oh, they understand कि अच्छा यार कि कुछ भी हुआ यार ये manage कर लेगा. हम्म. So having being that backbone, I think if you become that backbone of your company or where you work, और इवन इफ यू डूइंग योर ओन बिजनेस यू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार कि ठीक है कुछ भी हुआ मैं संभाल लूंगा. आई हम्म. थिंक इफ दैट टैग इज विद यू यू विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल. एंड वो व्हाट आर योर फिर थॉट्स ऑन दिस कि शुरू के दिनों में ये कर लोगे तो आगे जाके आपको मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज आगे आपकी फैमिली भी होनी है, फैमिली लाइफ होनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. शुरू में यूजुअली यू हैव मोर एनर्जी, यू हैव मोर एक्सपोजर, मतलब ग्रेजुअली यू आर गेटिंग मोर एक्सपोजर, तो आजकल कर लो तो कल को जो है शायद इतना ज़्यादा मसला ना हो. इस वाली चीज के ऊपर आई थिंक एक तो आई वोंट से कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल आपके मतलब शुरू में आप नहीं हो बाद में फैमिली हो जाएगी. आई थिंक इसके अलावा वंस यूर यंग, आई थिंक वंस यूर यंग इवन इफ यू एम्बैरस योर सेल्फ और आप कोई गलत चीज भी कर दो ना, देर इज टू मेक अप फॉर योर सेल्फ. हम्म. वंस यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड, आप नई चीज़ों और नई चैलेंजेस के अंदर जाके ना विद आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी सी कम इसलिए हो जाती है बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन. यू थिंक अच्छा है मुझे 5 साल हो गए इस कंपनी के अंदर, मैं ये चीज़ करूंगा तो ये गलत हो जाएगी, तो फिर क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे. कंपेयर टू दैट समवन जिसका 5 महीने का एक्सपीरियंस हो, वो तो कहेगा यार अभी तो मेरी कोई रेपुटेशन बिल्ड नहीं मतलब हुई, रिस्क अगर मैं एपेटाइट कम कुछ हो जाती है. गलत भी. ओके. सो मुझे मुझे ये बताओ कि like you're sitting at the other side of the table, you're interviewing candidates, तुम्हारे सामने आपके सामने एक CV आती है, right? So immediately what are you looking for in the CV, and immediately what is the biggest turn off for you as a hiring manager कि यार ये इसने क्यों ऐसे कर दिया? Just for those who are maybe making that mistake, hopefully they can eradicate that. सो आई थिंक नंबर वन जो चीज़ आती है दैट इज लुकिंग फॉर रेलिवेंट एक्सपीरियंस. Mm-hmm. So what your experience is, where you have worked. So if you are working and not a fresh graduate, तो number one वो होगा कि आपका पिछला experience क्या है. So who is the employer, क्या काम किए हैं. And then number one ये बहुत चीज़ लोग गलती करते हैं कि they just normally I am not against AI, आप ChatGPT करो अपनी job description, but relevant projects. So for example, if you've worked on a project, आप उसको लिखो कि what the project is and what was your role. क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 10 लोग कंपनी में काम कर रहे हो, 10 लोग प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं. Even if you're not leading the project, that's okay. It's normal. Yeah. But if you've added any relevant input कि अच्छा कि इस प्रोजेक्ट का XYZ डिज़ाइन मैंने देखा है, जब गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी मैंने देखी है, इस प्रोजेक्ट की मैंने सोशल मीडिया कंटेंट देखा है, कुछ देखा है, सो देन अगेन हैव दोज थिंग्स इन इट, रेलेवेंट एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने लिखा है. एंड देन इफ़ यूर अ फ्रेश ग्रेजुएट, आई थिंक एक चीज़ लोग बहुत गलती ये करते हैं कि अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में, देन इट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग ऑनेस्टली टू मी पर्सनली इफ आई सी कि किसी का GPA इज स्काई रॉकेटिंग बट रेलिवेंट एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स नहीं है. Mm-hmm. सो आई थिंक रेड फ्लैग तो नहीं मैं कह सकता, बट आई थिंक एक थोड़ा सा एक होता है कि अच्छा ठीक है कि यू वर्किंग यू स्टडिंग दैट्स राइट, बट compared to someone who maybe does not have a 3.9 or 4 GPA, अगर किसी का relevantly a good GPA 3.6 3.7 भी है, but if that person has a good internship experience, I think उसकी profile would attract me more. Right. And उस चीज़ पे ज़्यादा होगा because then again यूनिवर्सिटीज़ आपके उसके अंदर आई अंडरस्टैंड आपकी एजुकेशन के अंदर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स जस्ट वन थिंग जो एक बेसिक है उसके अंदर वो तो आता ही है, बट गेटिंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस बिकॉज एवरी एम्प्लॉयर वांट्स कि जो बंदा आता है ना आपकी कंपनी के अंदर, एक तो नंबर वन उनको पता हो कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क. बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे कभी कभी होता है कि यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स कम इन बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर,
डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल, आपकी एक वो जो ग्रूमिंग लेवल है ना, इफ़ यू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रीवियस इंटर्नशिप्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, उससे आपको बहुत अच्छा हो जाता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डेकोरम ऑफ द ऑफिस, किस तरह चलना है, क्या चीज़ है. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सही है. सो मुझीब, ट्रांजिशनिंग टू द फेवरेट पार्ट ऑफ माय डिस्कशन, जो मैं खुद से भी काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस पे. इट्स हाउ डिड यू एंड अप एट सासगार, एंड ऑल्सो फॉर मी पर्सनली मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन GWM मोटर्स एंड सासगार ऑटोज ऑल्सो. एक तो ये भी प्लीज़ बता देना, एंड टेल अस अ बिट अबाउट योर करंट रोल एज ब्रांड मैनेजर. व्हाट डज योर डे टू डे लुक लाइक? That would be very beneficial. If not for the other people, I myself am very interested to know. Okay, Aja. So I'll first just talk a little about my transition, how it happened. Yeah. So जैसा मैंने पहले भी I think in the initial part of the podcast मैंने बात की थी कि I have actually worked with GWM and Sasgar Hmm. while I was in agency. तो मेरा comparatively smoother एक experience था because I applied for it and I also personally reach out to the person that was hiring. ठीक. And then again I had a good impression on that person and he told me कि yes you're a good fit, come for an interview. So मेरा वो एक smoother process था because then again they weren't just looking कि अच्छा they knew कि अच्छा skill set है, इसने काम किया हुआ है. They were just looking for कि fit बैठता है organization culture के अंदर, you know, all of the other nitty gritties of finance and everything, वो सब कुछ था. So talking about Sasgar and GWM, so Sasgar Engineering Works Limited. So this is then again a parent company जिसके दो divisions हैं. There is a three-wheeler division जिसमें आप देखोगे rickshaws Hmm. और वो सब कुछ है. And then there is a four-wheel division. So GWM is a Great Wall Motors, is a Chinese automotive brand. Okay. So just like you can say NG, Morta, Jayco, Jetor, all these Cherry, all these brands. So GWM is a Chinese brand. So what is there कि GWM and Sasgar की partnership हुई है. So in Pakistan, Sasgar is working with GWM and पूरा जो brand है that we are running. It's brand और manufacturing, a local assembly, वो सब कुछ है वो इधर हो रहा है. So Sasgar is actually divided currently in two divisions, four-wheel division and three-wheel division. सही So है. I am specifically looking at the four-wheel division जो GWM है and bike, वो वाला भी जिसकी जो BJ40 है, वो भी लोगों ने देखी होगी. So that is specifically uh, the the explanation of what Sasgar and GWM is. सही है. So if I talk about my day to day, so I think थोड़ा सा difference ये है कि compared to many other brands in Pakistan, GWM and Sasgar, we have an in-house uh, marketing overall. So हमारे designers in-house हैं, creative team, strategy, all of these things, वो हमारा in-house होता है. So normally what happens is कि when you have an agency on board, top level strategy, product strategy, आप उनसे डिस्कस करते हो, शेयर करते हो, and then they come up with the communication strategy, designs and everything. But in parallel अगर हम GWM के साजगार की बात करें, so your designers, your video editors, creative, all of that is being managed in house. But being said that, we have some partners. So for example, it's a media agency है, we have a media agency who is our partner. So for example कोई events होते हैं, so events PR agency we have that, so we have to manage that as well. So मुझे एक चीज़ जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, you mentioned earlier on कि you worked with GWM as a when you were in the agency. तो अब now you're saying कि ये इन हाउस है इनका सब कुछ, पहले आउटसोर्स करते थे या कुछ स्पेसिफिक चीज़ इन्होंने आउटसोर्स की हुई that you worked on? पहले it was outsourced, अच्छा. पहले it was outsourced, but जैसे मैंने बताया कि I worked with them from 2022 to 2023. So 2023 में they made the decision that they are going to move their marketing in-house. So primarily mostly the team is in-house, but for example हमारी ads बनती हैं, कोई projects होते हैं, launch events and everything. For that on project basis we work with a few agencies के for example अगर ad agency है तो production house का काम करेंगे, अगर कोई event हो रहा है so we go to a PRO and event agency. So it's not that, but primarily जो day to day communication, day to day strategy,
डिजाइन्स, एवरीथिंग, वो सब कुछ इन हाउस हो रहा है। सही है। अच्छा, सो मुझीब इसके अंदर, बिकॉज द टाइटल सेज ब्रांड मैनेजर, राइट? सो मेरे ख्याल से देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर ओवरव्यूइंग। सो आई स्पेसिफिकली वांट टू नो कि एड वाली साइड पे, एडवर्टाइजमेंट वाली साइड पे आपका इसमें क्या रोल रहता है? बिकॉज वी नो कि GWM ने दो बड़े ही फेमस अभी रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हैं। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था, एंड आई सॉ इट ऑन टीवी एज वेल। आई थिंक एक तो वेरी रिसेंटली जो टैंक का आया है, और उससे पहले जो हाई GWM वाला था। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, बिकॉज यू पोस्टेड दैट ऑन लिंक्डइन एज वेल। आई एम आल्सो इंटरेस्टेड टू नो द बैक स्टोरी, और इसमें आपका क्या रोल होता है एज अ ब्रांड मैनेजर? ओके, सो जो लाइक टू स्पेसिफिक हमारे हैं, सो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, एक है जो मानू और शानदार, वो मोबाइल अरबाज बट वाला यस। हाइजीन वाला था, और एक था अबाउट टैंक 500। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी नई प्रोडक्ट लाइन आ रही होती है, सो फॉर एग्जांपल टैंक 500 की लॉन्च थी, सो दैट प्रोडक्ट आ रही है। सो वंस वी गेट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, the main thing is to understand what the positioning is in terms of the product in the market. तो फॉर एग्जांपल उसकी प्राइसिंग, सो प्राइसिंग की आ जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, कौन से लोग हैं जो ये प्रोडक्ट खरीद होंगे, सो ऑडियंस की वेरिफिकेशन, उनकी डेमोग्राफिक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग। सो जब ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद यू कम ऑन टू टू द एड, कि अच्छा इसकी जो एड और टीवीसी है वो किस तरह की होनी चाहिए, शुड इट बी वेरी फंक्शनल, इंस्पिरेशनल, किस तरह की होनी चाहिए, कि ताकि आपकी जो ऑडियंस देखे उसके लिए वो क्या होगी। So then you basically make a brief, you make a strategy, and then you share it with different production houses. वहाँ पे different directors and all of those people, जो the creatives, they come up with different concepts. कि अच्छा ये concept हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. So with this Tank 500, if I talk about it simply, आप देखोगे कि this is not you like your typical advertisement tank जिसमें वहाँ आ यस। जाए, यस। कि जहाँ पे गाड़ी का बताया गया है। सो इट्स टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड वेयर ही इज स्टक। सो आपने देखा होगा सम इंस्पिरेशन फ्रॉम क्रिस्टोफर नोलन के इंस्टाइलर की तरह वो हुई हुई है, कि जहाँ पे बट दैट व्हीकल टैंक 500 इज द वेसल, इज एक्चुअली समथिंग जो उसकी ज़िंदगी में है, जो उसकी मोनोटनी और सब कुछ है उसे लेके बाहर जा रहा है, एंड विच इज़ बेसिकली द बेसिक personification of Tank 500 as a product as well. कि right now the different cars that you have in the market, this stands out, this will take you somewhere where all the other cars will not. So that was the understanding जो हमने ad के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश की, that where within the city आपको सब कुछ कर रहा है, but it takes you somewhere where other cars would not. So that was the तो idea. इसमें आइडिया होता है आपके उसमें, या एग्जीक्यूशन भी होती है? दोनों चीजें आपके अंडर आती हैं, क्या होता है? So as a brand manager, uh, everything is your responsibility, हम्म। because at the end of the day, if you're working with an agency, then again they are your partners, but the onus and the responsibility is you, हम्म। कि ad क्या बन रही है, किस तरह की बन रही है, because at the end of the day responsibility आपके ऊपर होती है, anything happening with the brand, कि उसकी ad क्या जा रही है, उसकी पोस्ट क्या जा रही है, इन्फ्लुएंसर उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग कम्स विद द अप्रूवल ऑफ ब्रांड। उसका देन अगेन वही होता है कि जैसे अगर कोई इन्फ्लुएंसर वीडियोस है, सब कुछ चल रहा है उसमें, एक छोटे लेवल पे होते हैं, बट अगर टीवीसीज और एड्स हैं, इनकी बात ही, तो फिर तो इवन ये डायरेक्टर लेवल तक चीज़ें अप्रूवल्स तक जाती हैं कि अच्छा यार ये ऐड है, ये फाइनल कट है, ये चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस हो रहे हैं। सो बट एट द एंड ऑफ डे एग्जीक्यूशन भी, शूट हो रहा है, शूट किस तरह का हो रहा है, इवन स्मॉलेस्ट थिंग्स फ्रॉम कि अच्छा यार जो टैलेंट ऐसे वहाँ आ जाए, उसकी वार्डरोब ऑप्शंस क्या है, वार्डरोब उसने कपड़े का पहनने हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे यू आर द मैनेजर, आपने ब्रांड को मैनेज करना है। सो उसमें इट्स नॉट समथिंग लाइक कि वो अच्छा कि आपने प्रोडक्शन हाउस दे दिया वो मैनेज कर लेंगे, बट उनके साथ अब शो हमने एड शूट की थी कर दूँ, ट्रैवलिंग विद देम टू द शूट डेज, बिकॉज बहुत से डिसीजंस होते हैं जो उस टाइम पे हो रहे होते हैं, जो ठीक है सही है, उस टाइम सोचा होता है एक स्टोरी बोर्ड के ऊपर कि अच्छा इस तरह की शॉट्स आ जाएंगी, बट इफ इन दैट स्पेसिफिक डे धूप नहीं आ रही, तो हम्म। हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज दैट। अगर फॉर एग्जांपल टाइम का सा मसला हो गया, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी को मतलब टैलेंट लेट हो गया, कुछ हो गया, तो उस तरह के डिसीजंस एंड ऑल ऑफ दोस एग्जीक्यूशन में भी द ब्रांड टीम इज इन्वॉल्व थ्रू आउट दैट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट के आपने काम दे दिया और वो हो जाएगा, बट यू नीड टू बी देयर टू मेक श्योर इट हैपन्स, एंड इफ इन केस
कोई फोर्स मेजोर कुछ हो जाता है तो यू नीड टू मेक गुड डिसीजंस. ओके, एंड एडिंग टू दैट, इसमें एक और चीज़ है दैट I don't know who makes the decisions, but it probably could be the finance team or the brand itself. जो pricing होती है vehicles की, who decides that? Yeah, that basically comes from that a lot of Factors. मतलब like top leadership है, Hmm. the CEO, the finance team, and especially GWM China as well. So obviously because we are locally assembling, so taxation, all of Yeah, things, चीजें क्या हो रही हैं. But then again to a high level, the GM marketing and sales team बहुत important होती है, marketing team के high level बहुत ही हैं. Obviously we give our opinion, but all of these pricing values जहाँ पे किस पोजीशन करनी है किस ना करनी है, दिस इज अ डिसीजन जहाँ पे कलेक्टिवली होता है. बट मोस्टली इसमें बहुत से फैक्टर इन करके देखने पड़ते हैं कि अच्छा कहाँ पे फिट इन आप कर सकते हो इन दिस मार्केट. बट दैट इज समथिंग जो it's a huge decision and which actually makes or breaks yeah. the positioning of the car or any product that you have. ओके, सो मुझे बड़े ब्रांड के साथ काम करना या उसके साथ एसोसिएट होना ऑब्वियसली ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड एक्सपोजर एंड एवरीथिंग, बट what are some of the difficult things that you have to face here? Not necessarily bad, but difficult, like इधर क्या मुश्किलात ऐसी हैं जो शायद आपको पहले एजेंसी लेवल पे नहीं करनी पड़ी, प्लस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, people might think and say कि यार he has made it, um, he's living the life, etc etc. um, तो उस एंगल से अगर किसी को बताना हो कि यार इसमें ऑब्वियसली अच्छी बातें भी हैं, सब कुछ है, बट देर आर सम डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल, या मुश्किलात भी होती हैं, सो व्हाट आर सम ऑफ दोस थिंग्स? Yeah, I think specifically talking about the marketing field, I honestly मेरा बहुत strong belief है that marketing is one of the most difficult fields that there could be. So, for example, if you're in any other department, any other field, हम्म. एक बेस्ट एसओपी आपने बनाया हुआ है ना कि आपने ये कर लिया तो यार अब बेस्ट हो गया, फिट है, आप यू हैव. बट इन मार्केटिंग देर इज नो बेंचमार्क. आपने जो पिछला काम किया है दैट इज द लीस्ट. यू हैव टू कम अप विद समथिंग विच इज insightful, which is breaking the clutter, all of these things. So इसमें एक दो और चीज़ें ये होंगी कि obviously जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मैनेज करना पड़ता है. सो वंस मैं द फर्स्ट आई थिंक 3 months working at GWM, मेरे मोस्टली वीकेंड्स पे आई वॉज ट्रैवलिंग ड्यू टू वर्क. सो विद अ यंग किड ऑब्वियसली मुझे बहुत फील होता है क्योंकि इससे पहले एजेंसी लाइफ में ट्रैवलिंग थोड़ी सी कम होती थी. बट कमिंग टू द ब्रांड से थोड़ी सी ट्रैवलिंग शुरू में बहुत ज़्यादा हो गई थी. देयर वाज एन एक्टिविटी वेयर यू गो फ्रॉम ऑल स्थान फॉर टेस्ट ड्राइव्स. फिर एक दो जो इवेंट, ठीक है. अच्छा. एंड स्पेशली आई थिंक विद ट्रैवलिंग और वर्क लाइफ बैलेंस, जैसा शुरू के कुछ दिनों में आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर 3 months, हमने बताया कि मैं नहीं था वीकेंड्स के ऊपर. बट विद स्पेशली विद द किड नाउ एज वेल कि अब मुझे बहुत सा फील होता है एज अ फादर आई नीड टू बी देयर एट Yeah. मैक्सिमम टाइम गुजारता हूँ. बट देन अगेन इट्स phases in life. आपको you understand you're at a new workplace, you're at a brand manager level, maybe in a few years may get that option कि यहाँ पे you can opt out to how to manage time. But कुछ pressure वाले time में pressure I think and the stakes, because the stakes are much higher. Every single decision that you take you are responsible for it. इसमें simple एक आपने copy या उसको भी approve करना है ना, that comes in कि अच्छा ये चीज़ will spread all over पाकिस्तान के अच्छा यार कि ये चीज़ GWM ये चीज़ ये brand कह रहा है. So I think the responsibility that you have as a brand manager, उसके ऊपर प्रेशर आपके ऊपर होता है कि अच्छा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. Okay, Mujib, now we will move towards the last segment of this conversation. It's known as a rapid fire round. मैं थोड़ा सा आपको explain कर देता हूँ. I'll just give you a couple of options and you have to choose between them. And even if you want to elaborate, you can do that and probably give a one-line explanation of why you're saying that. It's not necessary, but if you want to, you can do that. And then we'll move towards the end of the podcast where I'll ask you a couple of more questions. So if you're ready, then we can begin. Okay. या रेडी. Okay. Okay. Mujib, so
Building a personal brand or focusing only on client work? What matters more early on in your career? I think focusing on brand work early on in your career. सही है. Jumping into the brand side or starting in an agency first, which is better for your foundation? Starting at an agency, that is for sure. I know it's a dream of every person to go into work in a brand, Hmm. but trust me, the foundations and the kind of work that you get to learn, because then again जब आपको ग्राउंड लेवल पता चल जाता है ना यार, ये काम है आपको, वंस यू गो टू द ब्रांड साइड, आपको कोई दूसरा बंदा, उसको पता होना कि यार ये बंदा 5 6 7 साल और रिलेवेंट एक्सपीरियंस का एजेंसी का है, तो वो आपसे बात ही डिफरेंट तरीके से करता है। आपसे कहता है अच्छा इसको पता है, इसको हम ये कोई कहानी या आई एम आई शाई नहीं कर सकते। सही है. Certifications and courses or real world projects and experience, where should students invest more? Real world projects, if real world projects, then again it comes down to if you're able to get that. Mhm. If you're not able to get that, then obviously the second option is to get relevant certifications, but the first priority should be कि आप reach out करो। हर किसी के दोस्त, भाई, खालू, चाचू, कोई ना कोई कंपनी में होगा किसी में जहाँ पे वो उसको इंटर्नशिप या कुछ कर देंगे। इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपनी कुर्सी से उठे, 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, Hmm. गो आउट देयर एंड ट्राई कि अच्छा है कि मुझे कोई महीने 1.5 महीने की अच्छी जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाए। Okay. What's your advice for fresh graduates, specifically on this, specializing deep in one industry or being a generalist marketer starting off? आई थिंक स्टार्ट ऑफ बी अ जर्नलिस्ट मार्केटियर, बिकॉज इसके ऊपर ये है कि यू नेवर नो दैट व्हाट अपॉर्चुनिटी मे कम इन व्हाट इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जांपल 3 4 years डाउन द लाइन, सॉरी 3 4 years बिफोर, मुझे नहीं पता था कि मैं स्पेसिफिकली ऑटो मार्केट के अंदर आ रहा हूँ। Hmm. सो ऑटोमोबाइल के अंदर मैं कर रहा हूँ। आई मे बी थॉट कि मैं किसी और वर्टिकल में कर रहा हूँ, किसी और इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, बट वही होगा कि आप 5 6 years 7 years के अंदर आपको एटलीस्ट गुड अपना अंडरस्टैंडिंग और आपको इंटरेस्ट का पता चल जाता है। सो इन द स्टार्ट गो फॉर इन अ कंपनी जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिले ऑफ डिफरेंट वर्टिकल्स, बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट एज वेल। अब फॉर एग्जांपल मैं बहुत सी चीज़ें, सॉरी मैं जो ये रैपिड फायर वाला नहीं, राउंड नहीं, है it's fine. It's fine. थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, जिसमें आई थिंक यू मेंशनड द मानू एंड द अरबाज भट्ट वाली वाली जो एक वीडियो थी। तो दैट इज समथिंग विच एन ऑटोमोबाइल नेवर डज। Hmm. वो बिल्कुल भी ऑटोमोबाइल फ्लेवर की नहीं थी, बिकॉज देन अगेन उसमें गाड़ी की बात नहीं हो रही थी, उसमें कुछ मतलब कोई बात नहीं थी, कोई प्रोडक्ट एलिमेंट, बट दैट वाज माय इंस्पिरेशन के कमिंग फ्रॉम द एजेंसी साइड वेयर आई हैव वर्क विद एफएमसीजीज, जहाँ पे वो इंटरेस्ट ऑडियंस का देखते हैं कहाँ पे है। सो इट वाज अ न्यू ईयर, सो द होल आइडिया वाज कि व्हेन आई पिच दिस आइडिया टू माय डायरेक्टर, सेड कि अच्छा यार, literally this was my main focal point ke come new year everyone will be talking about their new launches, everyone will be talking about कि अच्छा हम आपको फ्री सर्विस दे देते हैं, हम आपको गाड़ी का स्पेयर पार्ट ये दे देते हैं, बट हमने गाड़ी की बात नहीं करनी, बिकॉज न्यू ईयर के अंदर कोई नई गाड़ी देखेगा बट दिस विल स्टैंड आउट। सो इमेजिन इफ अरबाज बट गाड़ी में मानू के साथ बैठा हो और वो हाई जी में हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हो, ही लाफ्ड ऑफ, ही सेड अच्छा यार कर लो, देख लो क्या होता है, कर लेते हैं। बट देन अगेन इट took off because it was a different flavor। और अगर स्पेसिफिकली मेरा ऑटोमोबाइल ऑटो एक्सपीरियंस होता, मे बी आई वुड हैव सेड कि अच्छा यार इसमें गाड़ी की फंक्शनैलिटी, गाड़ी की ट्रेडिशनल स्पेसिफिकेशन ट्रेडिशनल वो पाथवे पे चीज़ें, चलते हैं आप. एग्जैक्टली। हाँ. बट दिस वाज समथिंग व्हिच वाज कंप्लीटली डिफरेंट बीइंग डन, और वो वही मैं कहूँगा कि दैट केम इन बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्ट कभी कभी कुछ कैंपेन्स के अंदर टुक द बैक सीट। इट वाज व्हाट द ऑडियंस वांटेड टू थिंक एंड हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। तो आई थिंक वो वाली चीज़ इसके Okay. अंदर होगा कि टू बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड Mhm. अंडरस्टैंडिंग इट डिफरेंटली शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर। सही है. Okay, the last one on this, digital marketing or traditional advertising, where should a new marketer focus on in Pakistan? यार आई वुड ऑनेस्टली से कि द फ्यूचर इज़ डिजिटल, ऑन 100%। द फ्यूचर इज़ डिजिटल, और डिजिटल के अंदर भी देर आर अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स नाउ कमिंग इन। अब आपकी मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट सेपरेट है, मीडिया सेपरेट है, आपके पीआर इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वो एक सेपरेट लाइन है। सो आई थिंक डिजिटल इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर, बट ट्रेडिशनल भी आपका कैरी ऑन साथ साथ करेगा।
So then again, it's not just about picking one, but as a priority, go for digital. And साथ ही साथ ट्रेडिशनल का भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वंस यू मेक द मूव, इफ यू वांट टू मेक द मूव टू अ ब्रांड, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई आल्सो लुक, सो मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस डिजिटल का ही था, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में साथ साथ वर्किंग विद डिफरेंट एजेंसीज, मुझे पता ट्रेडिशनल एजेंसीज, मुझे नो हाउ था कि अच्छा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग किस तरह होती है, टीवी पे ऐड किस तरह चलती है, टीवी के स्पॉट्स क्या होते हैं, प्लानिंग किस तरह की होती है, न्यूज़पेपर में ऐड देनी है तो उसके क्या है, प्रेस रिलीजेस करने हैं तो किस तरह है। सो देन अगेन ट्रेडिशनल का भी आपको आइडिया होना चाहिए। Okay. All right. That was it from the rapid fire round. Moving on, the last couple of questions. Mujib, like, just imagine you are back at LSE, 21, 22-year-old. What advice would you give yourself? Or what do you think if back then कोई ऐसी चीज़ें जो आपको उस टाइम पता होती that might have helped you, or you're someone who doesn't like to think that way? I think now that I look back, I wouldn't change my journey. I wouldn't. Because वही है कि where I am today, alhamdulillah, I'm happy that when I look back, मैं देखता हूँ कि I made a, a few good decisions at that time. Hmm. लेकिन उस टाइम पे अगर मैं वो कर रहा हूँ उस टाइम वही करूँगा कि honestly speaking that 21 22 year old Mujib could have been more aligned in what कि मार्केटिंग में ही जाना है, बिकॉज उस टाइम में थोड़ा सा इंडस्ट्री में था मैं कि अच्छा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, बट व्हाट आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि वो जो 8 9 मंथ्स की मेरी जॉब थी ना कॉन्ट्रैक्चुअल, Yeah. that really made me realize कि yeah, this is it. So I think उस time में when I go back I would if in a parallel universe if Mujib is making a decision और वो mindshare वाली contractual job को कह रहा है नहीं करना, मैं उसे धक्का दे कहूँगा नहीं यार please ये करो, because this is your stepping stone, because that was my first exposure of the advertising world कि advertising होती क्या है, कितने vertical होते हैं, क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब कुछ किस तरह होता है, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मुझे एक्चुअल एक्सपोजर फर्स्ट टाइम मिला था। Okay. And one final advice for the current students, who are just about to graduate or who have graduated very recently. What would you say to them? आई थिंक नंबर वन वुड बी के द फर्स्ट 1 to 2 years of your career, uh, don't look at the company name, Mm-hmm. look at the kind of work that they're doing, because आपके पहले 1 2 साल you can maneuver around, you can maybe switch the job after a few months अगर आपका relevant आपको समझ सिंक नहीं बैठ रहा, because I am of that person, अगर आपका for example किसी जगह पे आप जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आप देखते हो, सब कुछ देखते हो, आपका नहीं अगर फिट बैठता within your probation you switch up, because then again it I did that once in my life. I went to an agency, I was there for 2 months, मुझे समझ आता कि यार शायद मैं ये वाला जो रोल है ये नहीं कर सकता, I switched back to my old company. There is no harm in doing that, but don't make it that frequent. You should be able to understand, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर आप 5 कंपनीज में जा रहे हो, 5 ही कंपनी में आपको फिट ना बैठे। Yeah. So number one, I think first 1 to 2 years, look at the kind of work that company is doing. आप वहाँ पे अच्छी कंपनी में जाओ, get as much exposure as you can get, as much networking that you can get, make connections, अपना सीखो, learn different things, put yourself in difficult situations. For example, you can see कि अच्छा मेरी कंपनी की 7:30 बजे मेरा CEO बैठा हुआ है या बिजनेस डायरेक्टर बैठा हुआ है, सर पकड़ के बैठा हुआ है या वो सोच रहा है, ऑब्वियसली डायरेक्टली आप शायद अप्रोच ना कर सको, बट एटलीस्ट समझो कि अच्छा यार मुश्किल क्या हो रही है, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू, एटलीस्ट जो मुश्किल टाइम में, देन अगेन वी टॉक्ड अबाउट, जहाँ पे जिस टाइम पे क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम्स आई होती हैं, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, Yeah. क्योंकि बाकी डे आपका 5 days a week 8 hours a day सेम वही काम चलता रहेगा, बट वे यू गेट टू लर्न एंड वे यू गेट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स इज जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इज दी अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम अगर आपने अपॉर्चुनिटी उसको ले लिया, एंड यू नो ऑलवेज लुक फॉर प्रॉब्लम्स जहाँ पे हैं एंड बिकम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। खाली प्रॉब्लम ढूंढना तो आजकल एआई भी कर लेता है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मतलब आई एम ऑफ दैट पर्सन, जहाँ पे आई ऑलवेज से टू पीपल, आई थिंक एक बड़ा फेमस कोट भी है, आई डोंट नो किसका है, कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब बट पीपल हु यूज एआई विल टेक योर जॉब। Yeah. आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ एआई, मतलब मैं तो ऑनेस्टली चैट जीपीटी और क्लॉड
or Bard, or if you're looking at DeepSeek, they are the best colleagues that you can get. बेस्ट कॉलीग्स जो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे बेस्ट जो करेंगे आप उसके साथ बात करो, शेयर योर थॉट, बिकॉज देन अगेन once you train your any model specifically that you're working on, that will be, if you will be able to give your monotonous work to that AI, Hmm. और आप उसके then you will be able to do work जहाँ पे कुछ नया है, because AI आपको कोई नई चीज नहीं करके देगा, इट विल गिव यू थिंग्स जो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, और मे बी शो यू परस्पेक्टिव जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस चीज के अंदर यूज एआई, एंड नई चीजों के अंदर ऑलवेज थिंक योरसेल्फ, अपनी टाइम मैनेजमेंट करना है आपने। आई थिंक दिस इज समथिंग विच companies and organizations are also adapting, and they are being very vocal about it as well, they are use AI. अब my director, my bosses, they always say कि अच्छा यार AI यूज करो, कोई अच्छा टूल आता है हमें भी बताओ, हम भी यूज करें, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, करते हैं चीजें, बिकॉज देन अगेन AI will make your life easier, and it actually does. Okay, interesting. Thank you so much, Mujib. It was very nice talking to you, and I'm very hopeful that all the learnings that you shared with us, there are definitely students, people out there who would extract a lot of value from that. Thank you, and hopefully, see you soon and meet you as well, inshallah. Thank you so much for having me, Sek, on this podcast, and it was lovely speaking to you. Thank you. Likewise, likewise. Take care, man.